Hello students, welcome to Naira Groups of Coaching by Ashish Yadav. Today we are doing chapter first of class 10th mathematics, that is real number. This is introduction part 3 video. In this video we will study regarding the Euclid division lemma. Basically Euclid is the name of the mathematician who gave this lemma. This lemma is related to division process, and lemma means it is a proven statement. Like we are having थ्योरम होती है हमारे पास, सिमिलरली वी आर हैविंग लेमा. लेमा किस स्टेटमेंट को बोलेंगे? लेमा इज अ स्टेटमेंट, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव एनी अदर स्टेटमेंट. ओके, सो दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. व्हाट डज इट सेज? क्या बोलती है? फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर ऑफ positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 or less than 1. So before understanding the meaning of this statement, let us consider some example. Like if we want to divide 16 by 3, how we will divide this? 3 5 16, 5 times आएगा और 15 remainder we will get 1. This is known as quotient. This 1 is remainder. This 3 is divisor. And the 16 is dividend. And we already know a theorem regarding this division process, that dividend is given by divisor into quotient plus remainder. We have already studied this statement in lower classes, हम जानते हैं. We can verify this also. Like dividend is 16, divisor is 3, quotient is 5 and remainder is 1. So 5 into 3 is 15, 15 plus 1 is 16, so LHS and RHS is having the same value, that is 16. So this statement holds true, we know this thing. So यूक्लिड ने क्या कहा? यूक्लिड ने बताया कि इस डिविडेंड को इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट डिविडेंड थ्योरेटिकली, हम इसको एक वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं. लेट अस से ए. जो डिवाइजर है दैट इज 3, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक वेरिएबल b से. डिवाइजर को b से रिप्लेस कर दिया. क्वोशिएंट को हम डिनोट कर रहे हैं q से, एंड रिमाइंडर इज डिनोटेड बाय r. ओके, सो दिस इज द लेमा. दिस इज बेसिकली द यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट? सो now we are coming to this statement. For any given pair of integers, let us consider the given pair of integers a and b are given to us. There exists unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r. So if we will divide this a by b, जैसे हमने यहाँ पर इस 16 को डिवाइड किया था 3 से, ये 5 टाइम्स डिवाइड हुआ था, ये 5 टाइम्स गया था डिवाइड इसके अंदर. सो ऐसे ही जब हम a को डिवाइड करेंगे b से, कोई एक यूनिक इंटीजर आता है, उसको हमने कंसिडर किया q. लाइक यहाँ पर जैसे 5 आया था, डिवीजन के बाद कोई वैल्यू यहाँ पर एज अ रिमाइंडर बच रही थी, जो रिमाइंडर था हम उसको कंसिडर कर रहे हैं एज अ r. तो इसमें यहाँ पर इस टर्म को समझना जरूरी है. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r. इसका मतलब क्या है? आप जब 16 को डिवाइड करोगे 3 से, ऑलवेज यू विल गेट क्वोशिएंट इज 5, यू विल गेट q इज 5 एंड r यू विल गेट, ऑलवेज यू विल गेट 1. अगर आप डिवाइड करते हो 16 को 3 से, मैं डिवाइड करता हूं या कोई और इंसान डिवाइड करता है, कोई और मेथड अडॉप्ट करके अगर डिवाइड करने की कोशिश करता है, ऑल द टाइम यू विल गेट क्वोशिएंट इज 5 एंड रिमाइंडर इज 1. सो फॉर दीज पेयर ऑफ इंटीजर 16 and 3, 5 and 1 is a unique pair. 5 where 5 is quotient, 1 is remainder. Now this statement we have already discussed कि ये statement कहाँ से आई है. Basically this is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Now let us try to understand the meaning of this statement, where r is greater than equal to 0 and less than 1. If we will divide 16 by 3, 3 5 ja 15 will get 1 and remainder. If we will divide this 17 by 3, 3 5 ja 15, we will get 2 as remainder. If we will divide 18 by 3,
we will get 3 6 18 and remainder is 1. Remainder is 0. And again if we will divide 19 by 3, 3 6 18 will get 1 as remainder. So if अगर आप ध्यान से देखो तो रिमाइंडर 1 आया, 2 आया, 0 आया, 2 के बाद ये 0 हो गया, अगेन 1 हो गया. आप 20 को डिवाइड करोगे 3 से, यू विल गेट रिमाइंडर एज 2. फिर 21 को करोगे 0 रिमाइंडर आएगा. इसी तरह यहाँ पे एक देयर इज अ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन दिस डिवाइजर दैट इज b एंड ये r के बीच में एक रिलेशन होता है कि दिस रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर. ये जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है. सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, दिस रिमाइंडर इज लेस देन b. तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है इक्वल टू 0, बड़ा हो सकता है 0 से 1 लाइक 2. कितना बड़ा हो सकता है, ये हमेशा छोटा होगा b से, दैट मीन्स ये हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से. इफ़ यू आर डिवाइडिंग 19 by 7, अगर आप किसी भी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को 7 से डिवाइड करते हो तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो सकती हैं. r कुड बी 0 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. r 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. बट किससे बड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा छोटा होगा किससे, b से, डिवाइजर से. सो यहाँ पे डिवाइजर 7 है तो इससे हमेशा छोटा होगा, दैट मीन्स 6 possible values are there for remainder. So this is about Euclid division lemma. Now next we will study regarding the Euclid division algorithm.